کو کب پردے شب روک پاتا ہے، گمان ہے صرف باطل کا کہ وہ تجھ کو جھکاتا ہے، گمان ہے صرف باطل کا کہ وہ تجھ کو جھکاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم والعاقبۃ للمتقین۔ میں آج کے اس ارکان کے اجتماع میں پریس کے نمائندوں کا دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ الحمدللہ یہاں پر گزشتہ 4 دنوں سے جماعت اسلامی ہند کے ارکان کی پریس کانفرنس تھی اور اس درمیان میں ایک بڑا خطاب عام بھی، پبلک میٹنگ بھی یہاں پر ہوئی۔ آج کی یہ جو فائنل پریس بریفنگ ہے ہماری، انشاءاللہ اس کی صدارت محترم امیر جماعت مولانا سید جلال الدین عمری صاحب فرمائیں گے، اور ان کے ہمراہ نائب امیر جماعت مولانا نصرت علی صاحب، محترم انجینئر محمد سلیم صاحب جنرل سیکریٹری جماعت اسلامی ہند، اور جناب حامد محمد خان صاحب پریزیڈنٹ جماعت اسلامی ہند تلنگانہ اینڈ اڑیسہ کے علاوہ جناب حافظ محمد رشاد الدین صاحب سٹی پریزیڈنٹ جماعت اسلامی ہند حیدرآباد یہاں پر موجود ہیں۔ میں ڈاکٹر محمد خالد مبشر ظفر میڈیا سیکریٹری جماعت اسلامی ہند کے آن بہاف آف آپ تمام لوگوں کا خیر مقدم کرتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں، اور محترم مولانا سید جلال الدین عمری صاحب سے ادباً التماس کرتا ہوں کہ وہ میڈیا گیدرنگ کو، جس میں یہاں مختلف ریاست کے تیلگو، اردو، انگلش اخبارات اور ویژول میڈیا کے علاوہ پریس ایجنسیز کے نمائندے بھی یہاں موجود ہیں، وہ اس اجلاس کو مخاطب کریں۔ محترم مولانا سید جلال الدین عمری صاحب امیر جماعت اسلامی ہند۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میڈیا سے متعلق دوستوں اور ساتھیوں، یہ میں آپ سب حضرات کا دل سے اس میٹنگ میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ یہ 4 روزہ جو ارکان کا اجتماع یہاں ہوا، اس کے آخر میں آپ حضرات سے ملاقات کا موقع مل رہا ہے۔ اس میں بعض باتوں کی طرف ہم نے اپنے پریس ریلیز میں توجہ دلائی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ملک میں جو عدم رواداری اور تشدد کی فضا ہے، وہ اس ملک کے لیے سخت نقصان دہ ہے۔ عدم رواداری کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کسی ایک بات پر اصرار کرے اور دوسرے کو کچھ کہنے کا اور سننے کا یا اس کے خلاف رائے رکھنے کا موقع نہ دے، اسے عدم رواداری کہا جاتا ہے، اور یہ کسی جمہوری ملک میں اس کی اجازت نہیں ہوتی کہ آدمی اصرار کرے کہ میری ہی بات صحیح ہے، کسی دوسرے کی بات نہیں صحیح ہوگی اور کسی دوسرے کی بات نہیں چلے گی۔ تو اس سے جو ایک جمہوری فضا ہے، ڈیموکریٹک ایٹماسفیئر ہے، وہ ختم ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ ملک کے مختلف طبقات میں اس سے بے شعوری پائی جاتی ہے، صرف مسلمانوں ہی میں نہیں بلکہ غیر مسلم حضرات بھی اسے محسوس کرتے ہیں کہ یہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے، اور انسان کے مزاج کے خلاف ہے، ہندوستان کی روایات کے خلاف ہے کہ آپ اس پر اصرار کریں کہ ہماری بات چلے گی، کسی دوسرے کی بات نہیں چلے گی۔ بہت سے وہ لوگ جن کا تعلق، جن میں غیر مسلم حضرات بھی زیادہ ہیں بلکہ اکثریت انہیں کی ہے، انہوں نے اپنے ایوارڈ واپس کر دیے۔ بلا شبہ جنہوں نے اپنے ایوارڈ واپس کیے ہیں اور اسی فضا کی وجہ سے واپس کیے ہیں، اور کہا کہ واپس کیا ہے کہ جو فضا پیدا کی جا رہی ہے وہ اس ملک میں آدمی کو رہنے کے قابل نہیں چھوڑتی، تو ان جو جن لوگوں نے ایوارڈ واپس کیے ہیں ان کا آپ دیکھیں گے کسی خاص پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کے پیچھے کوئی پارٹی نہیں ہے، بلکہ ان کے دل کی آواز ہے، اور اس ملک کو جیسا دیکھنا چاہتے ہیں، جو آزادی ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں، اس کے خلاف ہونے کی وجہ سے انہوں نے آواز واپس کیے ہیں۔ اس پر سنجیدگی سے پورے ملک کو غور کرنا چاہیے کہ ملک کا
सोचने समझने वाला तबका इसमें क्या तकलीफ महसूस करता है। दूसरी बात इस वक्त हमारे सामने ये है जी, आप जानते हैं कि मरकजी हुकूमत हमारी जब से बीजेपी इक़्तिदार में आई है, उसका नारा यह था कि सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेने का वादा उन्होंने किया था। और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब बाहर जाते हैं तो इसी तरह की बातें भी करते हैं। हमारे लिए परेशानी की बात यह है कि ये कहते रहे हैं इस तरह की बात, लेकिन यहाँ के जो कमजोर तबकात हैं और मुसलमान हैं, उनके साथ जो जुल्म ज्यादती हो रही है उसके हक में कभी कोई आवाज नहीं उठाते। अभी आपने देखा होगा बाबरी वो उसका दादरी में बीफ का मसला सामने आया और उसमें शख्स की जान ले ली गई और जबरदस्ती मार मार के उसे खत्म कर दिया गया। मंदिर से उसके खिलाफ आवाजें उठाई गई, लोगों को जमा किया गया। आप खुद सोचिए, एक तो बाद में मालूम हुआ कि वहां बीफ नहीं था बल्कि बकरे का गोश्त था, वो बाद में ये बात मालूम भी हो गई। लेकिन अगर फर्ज कीजिए अगर वहां बीफ ही होता तब भी क्या किसी की जान आप ले सकते हैं? और अगर ये कोई ऐसा कानून मौजूद होता, मुल्की कानून अगर कोई मौजूद होता, तब भी आप उसे कोर्ट के हवाले करते और कहते कि साहब ये कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है, इसकी जगह खुद ही आगे बढ़ के इसे खत्म कर देना। ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। और दूसरे कि आप खुद सोचिए, दुनिया में हमारी क्या तस्वीर बनेगी कि आप किसी शख्स के दुनिया में किसी भी आदमी को समझा सकते हैं कि साहब एक आदमी की जान गाय का गोश्त खाने पर ले ली गई, किसी की भी समझ में बात नहीं आएगी और कहेगी कि साहब ये कोई अजीब गरीब बात है। आप हजार से समझाएं कि भाई हम गाय का एहतराम करते हैं, गाय का एहतराम करना तो एक अलग बात है, उसके लिए कुछ कानून बनाइए जो भी तरीका हो, लेकिन अगर किसी ने इस्तेमाल किया है गोश्त तो उसकी जान ले लेंगे आप। ये हमारे मुल्क की बदनामी का भी सबब है। दुनिया की कोई भी हुकूमत, कोई भी समझदार आदमी इसे समझ ही नहीं सकता क्या ऐसा भी दुनिया में होता है। तो हमने अपने मुल्क की तस्वीर भी खराब की और फिर यह है कि इतने बड़े वाक़े के बाद पूरे मुल्क के अंदर एक बेचैनी और इस्तिराब है। हमारे वज़ीर आज़म साहब ये कहते हैं कि सबको मिलकर रहना चाहिए, क्या वो ये नहीं कह सकते कि जो वाक़या हुआ गलत हुआ? इसी तरह वो जब सबका साथ लेने की बात करते हैं तो यहाँ के जो वीकर सेक्शंस हैं और खुद मुसलमान हैं वो देखना चाहते हैं कि वो उनके लिए क्या कर रहे हैं। आज तक कभी वज़ीर आज़म साहब ने ये नहीं कहा कि मुसलमान यहाँ माशी लिहाज से, तालीमी लिहाज से पीछे हैं और उनके लिए हम ये करना चाहते हैं। बस जब कभी मौका आता है तो भाई सबको साथ चलना चाहिए, हम सब मुल्क की भलाई चाहते हैं। अरे भी मुल्क की भलाई के साथ भाई अगर फर्ज कीजिए किसी को गोली चल गई है, वो आपसे दुहाई दे रहा है, उसके रिश्तेदार कह रहे हैं कि साहब गोली चल गई है, और आप उसकी हमदर्दी की बजाय ये कहें उससे कि सबको मिलजुल के रहना चाहिए, क्या इलाज हुआ इसका? तो ये बहुत ही नाजुक सूरत हाल है, इससे हमें परेशानी हो रही है। और दूसरे ये है कि जो इन्होंने ख्वाब दिखा है, अब आप देख रहे हैं कि ये कहा था कि मुल्क की मुल्क में जो दौलत है उसे हम वापस लाएंगे। अब तक कोई इस तरह का इकदाम नहीं हुआ, बल्कि ये कहा गया था कि हर एक के खाते में कितने 25 लाख रुपए 15 लाख रुपए पहुंच जाएंगे। किसी के आप में से किसी के खाते में पहुंचेंगे क्या? सबके खाते खाली पड़े हुए हैं। तो ये जो झूठे किस्म के वादे करना, जाहिर है कब तक इसे लोग बर्दाश्त करेंगे। और ये जाहिर है कि चूंकि उनके मल्टीनेशनल कंपनी के प्रेशर में है तो ये वहां से दौलत वापस नहीं ला सकते, और अब तरह तरह की इसके लिए बातें बना रहे हैं। इसी तरह गिरानी का मामला है,
آپ نے کبھی سنا بھی نہیں ہوگا آپ کی جتنی بھی زندگی ہے اس میں کہ دالیں جو ہے وہ 200 روپے تک اس کی قیمت ہو جائے گی اور پیاز دلی میں 80 روپے تک بکی ہے اور اب شاید کچھ کم ہوئی ہے. اور آپ کا یہ علاقہ جو ہے پیاز پیدا کرنے والا ہے, آندھرا ہے, مہاراشٹر ہے, تو ہو سکتا ہے یہاں کچھ قیمت رہی ہو, لیکن دلی میں 80 روپے تک پیاز بکی ہے. لوگوں نے پیاز کھانا چھوڑ دیا. تو یہ بات کہ گرانی جیسی چیز اس پر وہ کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں, اور اس لیے نہیں کنٹرول کر پا رہے ہیں کہ سارا مارکیٹ تو انہوں نے دوسروں کے حوالے کر رکھا ہے. وہ جتنا چاہے لاتے, جتنا چاہے نہیں لاتے. تو یہ جو صورتحال ہے, اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان کے تو اچھے دن آ گئے, ملٹی نیشنل کمپنیوں کے دن اچھے آ گئے, لیکن یہاں کے عوام کے لیے کوئی بھلائی کا کام اب تک سامنے نہیں آیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جماعت اسلامی نے اس پر بھی تشویش کا اظہار کیا ہے کہ اپنی تمام کوششوں کے باوجود آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے اندر خواتین کے ساتھ ظلم زیادتی, عصمت دری کے واقعات, مقدم تحفظ یہ روز افزوں ہیں. اور جتنے بڑے شہر ہیں اس میں تو خواتین اپنے آپ کو بالکل غیر محفوظ سمجھتی ہیں, اور خاص طور پر وہ خواتین جو ملٹی نیشنل کمپنیوں میں کام کرتی ہیں, راتوں میں وہاں رہتی ہیں, واپسی میں کہتی ہیں کہ ہماری جان مال عزت آبرو محفوظ نہیں رہتی. اور بہت یہ بھی کہتی ہیں کہ صاحب خاندان کے لوگوں سے بھی ڈر لگتا ہے, گھر کے لوگوں سے بھی ڈر لگتا ہے. یہ صورتحال جو پیدا ہو گئی ہے کہ یہ توجہ کی تعلیم نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ عورتوں کی ملازمت ملنی چاہیے, بلا شبہ ملازمت دیجیے آپ ان کو, لیکن پہلے ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت تو کیجیے. تو وہ خود کہتے ہیں کہ ہم اپنے گھروں میں محفوظ نہیں ہیں, اپنے رشتے داروں میں محفوظ نہیں ہیں, اپنے عزیزوں میں محفوظ نہیں ہیں, آفس میں محفوظ نہیں ہیں, اور تنہا ہم سفر نہیں کر پاتی. تو ایسی یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے, اس پر سوچنا چاہیے. جماعت اسلامی یہ سمجھتی ہے کہ جب تک آپ ملک میں اخلاقی فضا پیدا نہ کریں اور یہ احساس لوگوں کے اندر نہ پیدا کریں کہ بھئی غلط کاموں کا حساب اللہ تعالیٰ کو دینا ہوگا, اس وقت تک آپ اس سے نہیں بچ سکتے. اور اس کے ساتھ پوری دنیا کے اندر آپ دیکھیں گے ظلم زیادتی کا ایک چکر چل رہا ہے. اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ امریکہ اور روس بھی جو ہے ایک دوسرے کے خلاف بول رہے ہیں. اب یہ ہو سکتا ہے کہ ان کی سیاسی پالیسی ہو اور ایک دوسرے کو ڈرا بھی رہے ہیں, دھمکا بھی رہے ہیں, دنیا کو بیوقوف بنانے کے لیے بھی وہ کر سکتے ہیں کام, لیکن بہرحال دنیا کو یہ دکھا رہے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف آ گئے ہیں. اور اکھاڑا بنا رکھا ہے انہوں نے مسلم ممالک کو, اور وہاں کے وسائل کو استعمال کرنے کے لیے اسے استعمال کر رہے ہیں. اور مسلمان ممالک کا یہ حال ہے کہ کچھ ممالک روس کے ساتھ ہو گئے ہیں, چین کے ساتھ ہو گئے ہیں, اور بعض مسلم ممالک ایران وغیرہ اس کی تائید کر رہے ہیں, اور بہت سے ممالک وہ ہیں جو امریکہ اور مغربی طاقتوں کے ساتھ ہو گئے ہیں, اور عرب ممالک خاص طور پر سعودی عرب وغیرہ ان کا ساتھ دے رہے ہیں. لیکن تباہ ہو رہے ہیں لیبیا کے عوام اور روس کے سیریا کے عوام. اور ایسے پوری مسلم آبادی کے اندر یہ جو فضا پیدا کر دی گئی ہے یہ بہت ہی تشویشناک ہے. اور یہ صورتحال ہے کہ وہاں لوگ امن اور سکون کے ساتھ نہیں رہ رہے ہیں, اور دوسرے ممالک کے اندر پناہ لینے پر مجبور ہو رہے ہیں, اور پھر وہاں جانے کے بعد کچھ اور مسائل وہ پیدا کر رہے ہیں. تو اس صورتحال پر بھی ہمیں بہرحال غور کرنا چاہیے. ایک بات یہ بھی ہے کہ جماعت اسلامی یہ چاہتی ہے, ہمارے نزدیک سیریا کے مسئلے کا حل تو یہ ہے کہ وہاں جتنی طاقتیں ہیں سب ہٹ جائیں, اور اقوام متحدہ کے ذریعے یا بین الاقوامی کسی ایجنسی کے ذریعے وہاں آزادانہ انتخاب کرائے جائیں, اور جس کے حق میں رائے ہو اس کی حکومت بننے دی جائے. یہ راستہ وہ اختیار نہیں کر رہے ہیں. ہمارا خیال یہ ہے کہ ملک کی جو صورتحال ہے اخلاقی یا معاشی, اس میں اسلام ہماری بہترین رہنمائی کرتا ہے. اس سے انسان کے مسائل بھی حل ہوں گے,
और आने वाले दिनों में भी वो निजात पा सकेगा, दुनिया में भी सुकून की जिंदगी गुजारेगा। हमारी तो सिर्फ इतनी दरखास्त है कि लोग बगैर किसी तासुब के, और ये समझ जो बगैर के भी मुसलमानों का दीन है, मजहब है, इस्लाम को बराह रास्त समझने की कोशिश करें, कुरान से, हदीस से, उसकी तालीमात से, और फिर देखें क्या वो हमारे मसाइल को हल करता है। और अगर हल करता है तो ये बिल्कुल गलत बात होगी कि आदमी ये कहे कि साहब इस्लाम मसाइल को हल करता है लेकिन फिर भी हम कबूल नहीं करेंगे। तो हम तो मुल्क से ये चाहते हैं कि उसकी तालीमात पर वो गौर करे संजीदगी के साथ, तो उसके ये मसाइल और जो खराबियां आप देख रहे हैं हमारे ख्याल में दूर हो सकती हैं। यही चंद बातें हैं जो इस वक्त आपके सामने रखनी है। अब आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं। जी कर दीजिए। अभी मौलाना ने जो खिताब किया है उसकी मुख्तसर तेलुगु ब्रीफिंग हामिद मोहम्मद खान साहब कर रहे हैं। మిత్రులారా, మౌలానా సయ్యద్ జలాలుద్దీన్ उमरी अमीर जमाते इस्लामी हिंद, नेशनल प्रेसिडेंट జమాతే ఇస్లామీ హింద్ కొన్ని విషయాలు ఇక్కడ ప్రస్తావించారు. నంబర్ 1, మన దేశంలో ఇంటాలరెన్స్ పెరిగిపోతున్నది, కానీ మన ప్రధానమంత్రి మౌనం వీడడం లేదు. ఇంటాలరెన్స్ అంటే ఏమిటి, దాని యొక్క నిర్వచనం మౌలానా గారు ఇచ్చారు. ఇంటాలరెన్స్ అంటే ఇతరుల యొక్క విషయాలను ప్రస్తావించకుండా, దానికి వినకుండా తమ మాటనే నడవాలని ఏదైతే ధోరణి ఉంటుందో దానికి ఇంటాలరెన్స్ అంటారు. ఒక మనిషి ఆవు కూర ఉన్నదని మందిరం నుండి ప్రకటించడం ద్వారా కొట్టి దాద్రిలో చంపబడ్డది. ఇతర దేశాలలో దీని యొక్క దృశ్యం ఎట్లా ఉంటుంది, ఒక మనిషిని కేవలం మాంసం ఆయన ఇంట్లో ఉన్నందున చంపేయబడ్డదంటే ఎవరైనా ఈ విషయాన్ని నమ్మగలుగుతారా? మింగడం వారికి సరిపోతుందా అని మౌలానా గారు ప్రశ్నించారు. దీనితో మన దేశం యొక్క ఇమేజ్ ఇది పాడవుతుందని కూడా వారు దానికి సూచన ప్రకటించారు. అదేవిధంగా సబ్కా వికాస్ సబ్కా సాత్ అన్నారు, కానీ సబ్కా వికాస్ అయితే కాలేదు, కానీ మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ మరియు కార్పొరేట్ల యొక్క వికాస్ మరియు ప్రధానమంత్రి గారి యొక్క బట్టలతో వికాస్ అయితే మాత్రం అయింది అని కూడా మౌలానా చెప్పారు. అదేవిధంగా నల్లధనాన్ని విదేశాల నుండి తీసుకొస్తామని కూడా అన్నారు. మరియు ప్రతి పౌరుని యొక్క అకౌంట్స్ లో 15 లక్షల రూపాయలు వేస్తామని ఆ వాగ్దానం కూడా చేశారు. మరి ఈ సమయంలో మౌలానా గారు మీతో కూడా అడిగారు, మీ అకౌంట్లో 15 లక్షల రూపాయలు వచ్చాయా అని, కానీ మా అకౌంట్లు ఖాళీ ఉన్నాయి. ఇదే విధంగా దేశంలో ద్రవ్యోల్బణం పెరిగిపోతున్నది. పప్పు దినుసుల యొక్క ధరలు 200కు పైచిల్లుగా ఉండడం ఇది చాలా శోచనీయం. ఉల్లిగడ్డలు ఢిల్లీలో 80 రూపాయల వరకు అవి అమ్మబడ్డాయి. మరియు ప్రజలు ఉల్లిగడ్డలు మరియు పప్పు దినుసులు తినడం మానేశారు అని కూడా మౌలానా గారు ప్రస్తావించారు. అదేవిధంగా ఏదైతే
ప్రపంచ దేశాలలో ప్రత్యేకంగా సిరియాలో ఏదైతే జరుగుతుందో దాని యొక్క హల్లు మరియు దాని యొక్క సొల్యూషన్ మౌలానా గారు చెప్తూ అక్కడ ఏదైతే రష్యా, అమెరికా మరియు ఇతర దేశాల యొక్క అక్కడ పలుకుబడి ఉన్నది, వారు అందరూ అక్కడి నుండి వెళ్ళిపోవాలి. మరియు సిరియాలో అంతర్జాతీయ ఏజెన్సీ ద్వారా కానీ లేక యుఎన్ఓ ద్వారా కానీ అక్కడ ఎలక్షన్స్ జరిపించాలి. మరియు ఏ రిజల్ట్ వస్తుందో ఆ రిజల్ట్ను వారు ప్రజలు స్వీకరించాలి అని కూడా మౌలానా గారు అన్నారు. ఈ విధంగా ప్రపంచ దేశాలలో కూడా ఎవరైతే కుట్రలు చేస్తూ వారు ఇస్లామీ స్టేట్ మరియు ఇస్లామీ ఖిలాఫత్ ఇటువంటి విషయాలను కూడా బద్నాం చేయడానికి మరియు నవ్వుల పాలు చేయడానికి, ప్రజలలో ఒక వికారం కలిగించడానికి వారు కుట్రలు చేస్తున్నారు అని కూడా మౌలానా గారు ఈ ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ లో ప్రస్తావించారు. ఏమైనా మీ ద్వారా ప్రశ్నలు వస్తే ఆ ప్రశ్నలకు జవాబిస్తామని కూడా ఇప్పుడు ప్రకటించబడ్డది. एक सवाल, उसके बाद में दूसरा, क्योंकि मौलाना को मुश्किल हो जाएंगी जी. Mr. Mubarak and 4 other persons willing to answer on the call. एक बात तो ये बात जहन में रहनी चाहिए कि पर्सनल लॉ की पर अमल की हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने मुसलमानों को इजाजत दी है, बल्कि इसका हक दिया है. ये बात उसूली तौर पर आप मान लीजिए कि मुसलमानों का जो पर्सनल लॉ है उस पर अमल का उनको हक हासिल है. बाकी ये बात कि कोडिफिकेशन होना चाहिए, तो इसकी कोशिश मुसलमानों की तरफ से होती रही है, और अगर कोई शक्ल इसकी बनती है तो पर्सनल लॉ बोर्ड इसका इस्तेमाल करेगा. पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुसलमान इस पर्सनल लॉ से मुताल्लिक किताब मुरतब की है और उसे हुकूमत के सामने पेश भी किया है कि इसकी बुनियाद पर आप कोडिफिकेशन कर सकते हैं. लेकिन अब तक इस पर अमल नहीं हुआ. लेकिन अगर हुकूमत काम करती है और उसमें पर्सनल लॉ की बुनियादी बातों के खिलाफ कोई चीज नहीं है तो मुसलमान से कबूल करेंगे. और अब तक जो है बगैर कोडिफिकेशन ही के मुसलमानों की पर्सनल लॉ पर अमल होता रहा है, वो कोई रुकावट नहीं है. लेकिन बहरहाल अगर ऐसा हो जाए तो हम उसकी मुखालफत नहीं करेंगे. अगर इससे पर्सनल लॉ में कोई तब्दीली आप ना करें तो हो सकता है. जहाँ तक पर्सनल लॉ बोर्ड का ताल्लुक है जो इसकी वकालत कर रहा है, उसने अपने तौर पर एक चीज तैयार करके हुकूमत के सामने रखी है, उसकी बुनियाद पर आप कर सकते हैं इसे. जी मैं हामिद बोल रहा हूँ. जरा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है उसको बंद कर दीजिए आपके ऐलानात को. मैं देखिए दाइश जो कुछ कर रहा है इससे अगर वो बात जो कुछ दिखा रहा है वो सही है तो हम उसके खिलाफ हैं. किसी इंसान के साथ जुल्म ज्यादती करना
नाहक उसे मारना, हर तरह की सजाएं देना, और जो आपकी बात ना माने उसे बुरी तरह खत्म कर देना, ये इस्लाम की तालीम के खिलाफ है। इसलिए अगर दाइश के नाम से कोई तंजीम ये काम कर रही है तो हम उसके खिलाफ हैं। बाकी ये बात कि दाइश कैसे वजूद में आ गई, 2-3 महीने के अंदर वो उसने बड़े इलाके पर कैसे कब्जा कर लिया, ये खुद आप हजरात के सोचने की चीज है कि जब तक कुछ उसके पीछे कुछ ताकत ना हो, दुनिया में ऐसा कभी नहीं होता कि 3 महीने के अंदर 4 महीने के अंदर कोई ताकत खड़ी हो और मुल्क के बड़े हिस्से पर, शाम के और इराक के और फलां इलाकों पर उसका कब्जा हो जाए। ये मुमकिन नहीं है। और तीसरी बात सोचने की ये है, आप जानते ही हैं कि दाइश अगर कोई ताकत है तो अमेरिका चाहे 5 मिनट में उसे खत्म कर देगा, लेकिन वो दाइश को खत्म करना नहीं चाह रहा है, बल्कि सारी दुनिया को बुला रहा है, आ जाओ हमारा साथ दो। आदमी सोच सकता है कि जिस अमेरिका का मामला यह है कि वो अगर चाहे तो बड़े से बड़े मुल्क को भी मिनटों में खत्म कर सकता है। कह रहा है कि दाइश को हम खत्म नहीं कर सकते। जितने मगरबी मुल्क हैं बुला रहा है उनको, कहा आप भी साथ दीजिए, आप भी साथ दीजिए, बड़ा खतरा है, इसे खत्म करना आसान नहीं है, हमारे लिए भी खतरा है, आपके लिए भी खतरा है। अरे खतरा है तो आप खत्म कर दो ना उसे, लेकिन वो खत्म करना नहीं चाह रहा। इससे खुद मालूम होता है कि कितनी बड़ी साजिश है जो इसके पीछे है। क्या आपका जहन सोच सकता है कि दाइश का अमेरिका खत्म करना चाहे और वो 5-10 मिनट भी जिंदा रहे? ये मुमकिन ही नहीं है। और 3 महीने के अंदर कोई पार्टी खड़ी हो और मुल्क के बड़े हिस्से पर कब्जा कर ले, ये मुमकिन है? ये भी मुमकिन नहीं है। जब तक इसके पीछे कुछ ताकतें ना हो और उनके वसाइल ना हो और उनके हथियार ना हो, उस वक्त तक मुमकिन नहीं है ये। और ये दुनिया को तमाशा दिखाया जा रहा है कि अब इसमें रूस का इन्वॉल्वमेंट भी है और फला का भी इन्वॉल्वमेंट है, और सारे और दोनों आपस में एक दूसरे के खिलाफ भी बोल रहे हैं। मैंने बताना कि ये हो सकता है इन दोनों के दरमियान भी कोई साजिश हो कि ये हम ऐसा करेंगे, तुम ऐसा करो, और फिर जो कुछ होगा उनके वसाइल पर हम दोनों मिलकर कब्जा करेंगे। तो वहाँ हालात को नॉर्मल लाने की कोशिश भी नहीं हो रही है। इसलिए हम इस पर यकीन करते हैं। बाहर पूरे मुल्क में हम उसके खिलाफ ऐलान भी करते रहे हैं, हमारे रिजोल्यूशन भी मौजूद है। जुल्म ज्यादती का जो रास्ता दाइश ने इख्तियार किया है उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। हम उससे अपनी अलहदगी इख्तियार करते हैं, लेकिन बाहर ये साफ मालूम होता है कि गोया इसके पीछे साजिश है और बगैर साजिश के ये वजूद में नहीं आ सकती। और चाहे तो दाइश भी खत्म हो सकती है, लेकिन चूंकि मगरबी मुल्क नहीं चाहते तो खत्म हो जाए और ये जो अरब ममालिक हैं उन पर अपना कब्जा बाकी रख सके। और आपको सुन के ताज्जुब होगा, ये बात भी सामने आ रही है, दाइश ने मुसलमानों को और मुसलमानों के नुमाइंदों को, मुसलमानों को खत्म किया है, और आज तक किसी इसराइली पर उसका हमला नहीं हुआ है और किसी इसराइली को सजा नहीं मिली है। क्यों है ऐसा? कौन सी ताकत है इसके पीछे? ये सब सोचने की चीजें हैं ना। महज ये बात के साथ वो जुल्म कर रहे हैं, बिलाशुबा जुल्म जो करेगा वो उसे हम बुरा ही कहेंगे, किसी जालिम की तारीफ थोड़ी कर सकते हैं हम। लेकिन आपको देखना ही चाहिए ना कि कौन लोग हैं ये लोग। खुद ही खड़ा कर रहे हैं, खुद ही हंगामा बता रहे हैं, कभी तालिबान को खड़ा कर दिया, कभी फलां को खड़ा कर दिया, और उसके फिर उनको बदनाम भी करना शुरू कर दिया। तो ये सब बातें सामने आ रही हैं। इनको सामने इसी की बुनियाद पर आपको सोचना चाहिए और अपनी राय जाहिर भी करनी चाहिए। जी, खास करके हैदराबाद से बच्चे यहाँ के आईएसएस में जाने की कोशिश हो रही है, फेसबुक वगैरह सोशल मीडिया के। देखिए, अगर ये अगर बात सही है, दाइश से मिलने के लिए जाना चाहते हैं तो ऐसे बेवकूफ और नादान लोग हर जगह मिल जाएंगे आपको। हो सकता है, मेरी तहकीक नहीं है, आप हैदराबाद में रहते हैं, आप मालूमात ज्यादा होंगी। और अगर यहाँ से कोई बच्चे जा रहे हैं तो बेवकूफ है, उनके माँ बाप की जिम्मेदारी है, आपकी और हमारी जिम्मेदारी है कि इन बच्चों को समझाएं कहाँ जहन्नम में जा रहे हो तुम, न दुनिया भली होगी ना आखिरत भली होगी। ये समझाना चाहिए उनको, उनकी तारीफ नहीं कर सकते हम। अरे कुछ उनको समझा दिया गया किसी ने कि वहां जाके मर जाओगे तो सीधे जन्नत में पहुंच जाओगे। जुल्म ज्यादती करके आदमी जन्नत में जाता है क्या?
جی ابراہیم صاحب. चारों इजलास में आप लोगों ने जो डिस्कस की और जिन बातों को आपने आदम रवादारी और हिंदुस्तान की जो सूरत हाल भी पेश की, क्या इससे मरकज को आप वाकिफ कराएंगे आपके दरबार जमात इस्लामी के? देखिए, मरकज से वाकिफ कराने की दो सूरतें हैं. एक तो ये कि हमारे रिजर्वेशंस जो हैं अखबारात में छपते ही नेट पर आ जाएंगे.